Class 10 Science Chapter 3. Okay, no background required because we already done enough of background. Physical, we have seen how many, what are the physical qualities of metals, what is it. Okay. Although I have with me the reactivity series of non-metals, but we will not do it now. We'll do it later. Okay, let's start with the chemical part first. The first chemical that we see, first series of chemical equation, this will be, these are chemical compounds. Which is the first chemical property that we see? See metal plus oxygen. What happens? Now, this is a very natural thing that we will get metal oxide, right? राजवर्धन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. Yes, sir. मेटल और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे कैसे ये देखो. सो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, so let us as we are aware, what is the reactivity series? So potassium. One. Stop calling me a cute zebra. In iron, D in library, the actually honey आता है, उसको मैं भी ये आया sorry, honey, learn how, नहीं stop calling me cute zebra in the library, honey, learn how copper saves you. In the library, honey, learn how copper saves you. So यहाँ से देखना शुरू करें. K or Na, very very reactive. React at room temperature with oxygen of air. And since they are so reactive, that is the reason they are not kept open in the air. Instead, they are stored in kerosene. So, stored in kerosene. Why? So that they don't come in contact with air. Ravi, understood? So that they Yes, don't sir. come in contact with air. But when they come in contact with air, what happens? K plus O2. K plus O2 and both Na plus O2. This will make oxygen. And how will it happen? They will burn with sparkling light.
sodium will have golden light, especially golden spark. Next comes magnesium. मैग्नीशियम इतनी तेज नहीं जलेगा, मैग्नीशियम को थोड़ा सा लाइट दिखाना पड़ेगा. मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम को हल्का सा जलाना पड़ेगा. So it will require light, it will require heat for burning. इसका एक वो एनसीईआरटी में को दिया हुआ है एक्टिविटी कि आपने मैग्नीशियम का रिबन ले लिया और रिबन में तो आपने आग लगा दी, आग लगा दी तो जला. और कैसे? तो वाइट, ये वन मार्क का क्वेश्चन है. वाइट अभी साउंड ऑडियो क्वालिटी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा? प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर. नो सर. ठीक है, मैंने दोनों लगा रखे थे, मैंने कहा छोड़ दो, तो आदत है एक कान से लगा. ऑलराइट, सो ये वन मार्क का क्वेश्चन है भाई, और दोनों कौन कौन सा? ये वाला गोल्डन स्पार्कल का वाला, ये वाला, और ये वाइट डेजलिंग लाइट. वाइट डेजल, डेजल सबको पता ही है, बहुत तेज वाली मशीन. नाउ ओके, नेक्स्ट कम्स कैल्शियम. हमने किसकी बात कर ली? इसकी बात कर ली, मैग्नीशियम की बात कर ली, कैल्शियम बात कर ली. तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, again it will react with carbon with oxygen and make give you CaO, calcium oxide. This is called calcium oxide तो हो गया. This is also called line. It is found like line जो अर्थ में मिलता है, चूना जो मिलता है अर्थ में, it is found in this form. Sir, हाँ जी. sir, in this reaction, sir, will require heat. हाँ, Will we require heat, sir? इसके अंदर यस, रेड हॉट हीटेड कैल्शियम के ऊपर हम इसको पास करते हैं. एंड सिमिलरली द केस विद जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक. सो एल्यूमिनियम, जिंक प्लस O2, again heat, so very hot. Aluminum zinc will have to be made very hot, and then oxygen passes over it, and then you will have Al2O3. Here you will have जिंक का तो 2 होगा, जिंक का तो 2 है, तो ZnO है. सर जिंकेट होगा ना. Zn जिंकेट अलग बन, जिंकेट का तभी आएगा, जिंकेट का भी आएगा. ZnO. ओके, अच्छा यहाँ तक तो बात है. अभी देखो जैसे जैसे बढ़ता है हम नीचे आते जा रहे हैं, मुश्किल से हो रही है. यहाँ सबसे इजीली हो गई थी, इधर थोड़ा हीट करना पड़ा था. ये इधर तो जलाना पड़ा था रिबन को, इधर हीट करना पड़ा. अब आयरन को भी हीट करना पड़ेगा काफी ज्यादा. आयरन होगा हॉट, और उसके साथ ऑक्सीजन उसके पास प्यार करेंगे. अच्छा सर, ये रिएक्शन मैं गलत बताऊंगा, दोबारा सुनिए. Now this is the reaction of rusting. Iron plus oxygen from air will make Fe2O3. Iron oxide. Iron 2 oxide. This is called iron oxide. And then what it will do is it will get attached with water molecule in the air. Let's say X number of molecule.
अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल घुस जाएंगे, मॉइस्चर कम है तो ज्यादा कम मॉलिक्यूल, and you will get, what will you get? You will get Fe2O3 dot XH2. This is the chemical symbol for rust, and it is known as hydrated, हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर आ गया इसके अंदर, हाइड्रेटेड, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आगे उसके बाद, so what are we doing? ये पूरे टाइम हमने क्या किया, हमने मेटल के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देख लिया क्या हो रहा है। नेक्स्ट, ओके, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर के अंदर हो रही है, बट देयर इज अ चेंज इन रिएक्शन। लेट अस से you have a red hot, you have a red hot iron, so iron which is red hot, now it will not burn, it will not produce a flame, but it will combine with oxygen. Fe will combine with oxygen and will give you another product of iron oxide. It was iron 2 oxide, here we will get Fe3O4. This is sometimes called ferric oxide, but I've seen in many books now, they just don't call it that, they call it iron 3 oxide. So, अगर नॉर्मल हवा के अंदर कोई आयरन का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो ये बना रहा है, और अगर आपने उसको हीट कर दिया, वाटर नहीं है वहां पे, नो वाटर इज देयर, एंड उसके ऊपर से ऑक्सीजन गुजारी जाएगी थी लास्ट में। व्हाट अबाउट कॉपर? इट डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट बर्न, डज नॉट रिएक्ट एक्सेप्ट a layer on the outer part of copper. सर कॉपर का जब बर्न करते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है? कॉपर जब बर्न नहीं होगा, कॉपर से जब मिल जाएगा Cu प्लस O2 टू Cu, और जनरली क्या होता है, ये कॉपर का जो बर्तन होगा, कॉपर का बर्तन उसके चारों तरफ डल एक लेयर बन जाएगी, तो मैं डल लेयर। सर वो तो अलग रिएक्शन होता है सर। बताओ कैसे? एक से कॉपर के ऊपर अगर अगर आप ज्यादा हीट करके करोगे, चलिए कौन सी रिएक्शन बताओ? यस सर, उसका रिएक्शन होगा सर Cu प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O सर, दैट विल गिव अस C कॉपर कार्बोनेट प्लस इनटू कॉपर हाइड्रोक्साइड। वो तो कॉपर का रस्ट, कॉपर की कोरोजन की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन कॉपर ही होगा। हाँ तो उसको कोरोजन ऑफ कॉपर बोलते हैं ना, यस दैट सर। इज कॉल्ड कॉपर कोरोजन ऑफ कॉपर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, that तो is we are ये not क्या? studying that now. Right now we are studying how does it react with only oxygen, not with carbon dioxide and H2O water. ओके ठीक है, सर, तो बस तो सर होगा वो तो CO, बट कॉपर ऑक्साइड होगा ना? that will be COCO3 plus CuOH2, ठीक है? यस सर, यस सर, ठीक, इनटू तो CO। वो कोरोजन में आएगा, वो पहले हम कर चुके हैं, आई थिंक हमने लास्ट क्लास में शायद किया था या फिर आगे करें। होता क्या है, जब कॉपर जो जो बर्तन होता है ना, कॉपर का बर्तन, मैं दिखाता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हो ना ट्रिक्स, वो ये है। ये देखो, ये जो बर्तन है ये कॉपर का वेसल है, ठीक है? यू कैन सी ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ दिस, तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो, अंदर का नहीं दिख रहेगा आपको, लेकिन ये दिख रहा होगा, दिस ऑल दिस ग्रीनिश पार्ट। ओके, सो दिस इज नॉट कॉल्ड रस्ट, दिस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। व्हाट इज द रिएक्शन फॉर दैट, अब मैं लिख देता हूँ साइड में, कोरोजन ऑफ कॉपर।
तो कॉपर जो एयर में खुला रहता है, जैसे ये कॉपर का बर्तन है, प्योर कॉपर का है, प्लस O2 प्लस CO2 प्लस वाटर, what do you call water vapors from air make you CuCO3 copper carbonate dot CuH, copper carbonate CuH2. This is the greenish origin of copper. ये रिएक्शन, बट यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अच्छा दोस्तों, तो हम देखो ऊपर से चलते चलते, हालांकि हमने बीच में कुछ छोड़ दिए, लेकिन हमने पोटेशियम देख लिया, सोडियम देख लिया, कैल्शियम देख लिया, मैग्नीशियम देख लिया, एल्यूमिनियम देख लिया, जिंक देख लिया, फेरस देख लिया, आयरन देख लिया, कॉपर भी देख लिया। अब बच गए ये दोनों, एक ये नहीं है। सो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है मेरे से कि सर ऑक्सीजन में जो चांदी होती है, चांदी का भी तो डल कलर हो जाता है हवा में रखे रखे बहुत दिन तक, वो क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं कर, तो वो दैट इज डिफरेंट रिएक्शन। इन दैट व्हाट हैपेंस इज, कॉपर जो होती है, जो एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, उससे कंबाइन करके AgS बना देती है, सल्फर सिल्वर सल्फाइड, और वो ये डल कर देता है इसको, ये डल कर देता है, डस्ट डलिंग ऑफ सिल्वर। इसको भी बाद में फिर हम जाते हैं ज्वेलर के पास चमकाने के लिए, ज्वेलर्स को केमिकली हटा देते। Okay, so this is not a reaction of oxidation, this is a origin reaction. Right. With this I come to the end of oxygen. Right. थोड़ा सा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ओके, कार्तिक सिरोही आपसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? सबको कहीं को टेंशन नहीं आई? क्योंकि हमने सारी बैलेंसी हमें याद थी, बैलेंसी के हिसाब से हम बनाते चले गए अपने जो फॉर्मूले बनाने था। ठीक है, ओके कार्तिक, आई एम शेयरिंग। सर आपकी वीडियो अजीब सी हो गई है। हाँ वो लाइट चली गई, आ जाएगी 2 मिनट। हाँ सॉरी, ये कहाँ गई? यस, हाँ ये ओके, ये हो गया। हमने ये देख लिया, देख लिया, देख लिया। आज हम शुरू कर दिए हैं ये सब तो बाद में पढ़ते रहना आप लोग, मेटल मोटल की प्रॉपर्टी ये यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज देख ली हमने। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में भी दी हुई है, सेम थिंग। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एक्यूट जैबरा इंस्टेड। कोबाल्ट में उसमें नहीं है, उसको अलग कर दिया। यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, उसके बाद आता है आयरन, निकल, टिन, लेड, 4। कोबाल्ट को आउट कर देना यहाँ से। देन कम्स हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यहां से पढ़े। कार्तिक सिरोही, अच्छा इसकी लाइट चलेगी शायद, इसकी भी। कार्तिकेय, गुड इवनिंग, कैन यू रीड कार्तिकेय? So today there is a lot of background noise here. ओके कोई नहीं, ठीक है। अंतरिक्ष, आप पढ़े अंतरिक्ष। Yes, sir. Sir, reaction of metals with oxygen. या
All the metals down to and including mercury in the activity series combine directly with oxygen to give their oxides. In general, metal plus oxygen is equal to metal oxide. Except alkali metals such as sodium, potassium, etc., and alkaline earth metals such as magnesium, calcium, the reaction is slow at an ordinary temperature. Sodium and potassium react spontaneously at room temperature. Therefore, these metals are kept immersed in kerosene. Sodium plus oxygen gives us sodium oxide. Metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, and zinc burn in oxygen or air. Sodium quickly burns with a bright golden yellow flame. Calcium plus oxygen is equal to calcium oxide. ओके, Magnesium burns with the. एक मिनट होल्ड करना। दोस्तों, दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, एल्कलाई अर्थ मेटल्स और एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, दोनों का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा जब चैप्टर 5 कराऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा आइडिया दे दूं तुम्हें। एक मिनट देखो, क्योंकि जो भी हम पढ़ें वो ऐसा ना हो कि हमें पता ना हो। देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ, लुक एट दिस। या दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, नाउ प्लीज सी लुक। अच्छा, इन्होंने नहीं दिया। अदरवाइज अदरवाइज देखिए, देखिए, इसमें भी नहीं दिया। ओके, चलो मैं बता रहा हूँ। ये जो पहला ग्रुप है ना, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। इसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है, कैन यू सी दिस, alkali metals. What are alkali metals? Those metals whose oxides are soluble in water. And since we have studied that metal oxides are basic in nature, so if it is a base and it dissolved in the water, it is called alkali. So group 1, all metals are called alkali metals because their oxides will all be basic in nature and will be dissolvable in water. Alkali earth metals are generally word given because most of them, as compared to the first part, most of the second group metals are found in the earth crust. So they have been given a kind of nickname as earth metals. At this stage, let us leave it at this. When we come to chapter 5, periodic classification, I will go in more detail of this. Okay, Antariksh, continue please. So magnesium, अभी हमने देख लिया ऊपर, we have seen sodium, potassium बहुत जल्दी react करती हैं spontaneously. और उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, दे बर्न इन ऑक्सीजन और एयर, जल्दी से बंद करती है। ठीक है, नाउ मैग्नीशियम का बताइए, आप पढ़े मैग्नीशियम। Magnesium burns with a dazzling white light. Magnesium plus oxygen is equals to magnesium oxide. Zinc burns only on strong heating. Zinc plus oxygen is equals to zinc oxide. Aluminium combines with oxygen only on strong heating to form aluminium oxide. Aluminium plus oxygen is equals to aluminium oxide. Iron slowly rusts in the most moist air to form reddish brown powder. Fe2O3 Fe plus O2 is equals to Fe2O3 dot XHU. Okay, now let us see the other reaction of iron. If the iron is uh, if the iron is done in a strong manner, heat करके तब क्या होगा, आज पढ़े। अंतरिक्ष, आप ही कंटिन्यू करें, आई चेंज द रीडर। Okay, sir. Iron does not burn on strong heating but glows red hot and forms Fe3O4. Fe plus oxygen is equals to Fe3O4 iron oxide. Copper does not burn but a black coating is formed at the surface. The black coating is of copper oxides. Copper plus oxygen is equals to copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. ओके, एक मिनट। ओके दोस्तों, हमने एक चीज यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड का मामला है, अब पता नहीं सारा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कहाँ से क्वेश्चन टपका दें, तो कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, इस कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग। नाउ if you pay attention, you will find the word anode here.
See what happens is, अभी तो खैर फिर भी स्टेनलेस स्टील का बहुत यूज होने लग गया है। थोड़ा सा टाइम पहले जब हम छोटे थे, मुझे ध्यान है एल्यूमिनियम का ही बनता था, प्रेशर कुकर वगैरह सब एल्यूमिनियम के होते थे, बर्तन भी सब एल्यूमिनियम के होते थे। स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत कम होते थे। सो एल्यूमिनियम के अंदर प्रॉब्लम क्या है? एल्यूमिनियम when it combines with the oxygen of air, it starts getting corroded and it will give you Al2O3. Okay. Now the beauty of this is, if the outer part is corroded, inner part does not get corroded. So what will happen is, you have a utensil which is of aluminum. This part will get corroded more. This part will not get corroded less. Will go inside. यहाँ कोरोजन ज्यादा हो जाएगा, इधर कोरोजन कम हो जाएगा, इधर कोरोजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एयर है जब जो कवर उसमें आ रही है, जब आप उसको हीट पे रखे हो तब वो एयर से कांटेक्ट में ही आ रहा, ऊपर ऊपर के बर्तन में कोरोजन ज्यादा हो गया, नीचे वाले में कम हो गया, इधर छेद हो गया या कुछ होगा। ठीक है, वो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, पतली सी लेयर है बर्तन की, वो वीक हो जाएगा, और ये दिस वीक एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो इसमें होल हो जाएंगे। इस चीज को रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया विच इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। उसमें क्या करते हैं कि यू टेक container in which water is there, and in this water you put some drops of H2SO4, some drop of sulfuric acid, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। वो किस लिए डाल रहे हैं? बिकॉज वी वांट इट टू मेक इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए। एंड देन एज यू अवेयर, we have two electrodes, one is positive and one is negative. So positive will attract negative ions, that are anions, so this is called anode, and this will attract negative ion, this will attract positive ion, this will be called cathode. The way to remember anode cathode is, everybody वैसे remember, सबको पता होता है anode positive होता है, cathode anion जो होते हैं, anion नेगेटिव होते हैं, तो जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किसको करेगा? नेगेटिव आयंस। अब ये है पानी आपका, ये पानी जब वाटर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? ये H प्लस 2H प्लस और O माइनस में होगा। O क्योंकि नेगेटिव है, वो भाग के जाएगा इसके पास, H क्योंकि नेगेटिव है, H जाएगा इसके पास, हो जाएगा इसके पास। इसको बना देंगे हम एल्यूमिनियम का, इसको हमने एल्यूमिनियम से बना दिया। ये हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एल्यूमिनियम का बनाया है, इसके पास फटाफट इतनी सारी ऑक्सीजन दे दबा दे पहुंच गई, वो रिएक्ट कर जाएगी और आपका पूरा बर्तन जो होगा वो Al2O3 की लेयर से कवर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हमने इसको एनोडाइज्ड कर दिया, अपने एल्यूमिनियम को एनोडाइज्ड कर दिया, और अब ये बर्तन बनाने के लिए सीख। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनोड। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू हाउ इट वर्क्स, क्योंकि एनोड बनाया है एल्यूमिनियम का। एनोड कौन सा होता है? जो नेगेटिव आयंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? एनायन कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं, N for नेगेटिव। और कैथोड पॉजिटिव करेगा। जब वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो ये ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन भागेगी नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, भागेगा कैथोड की तरफ। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं क्या होगा, लेकिन हमें इससे मतलब है ऑक्सीजन यहाँ जाएगी और ये बना हुआ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को बना हुआ तो पूरे के पूरे रिएक्शन हो जाएगी और पूरे इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इससे हम जो बर्तन बनाएंगे हमारे, वो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके, राजवर्धन आप पढ़ें अभी आगे।
Yes, sir. ये नॉलेज डेस्क पढ़ दी, एनोडाइजिंग। Knowledge desk. Anodizing. Aluminum is quite reactive, but it resists corrosion. This is because a thin layer of aluminum oxide is formed on the surface, which prevents further corrosion. The resistance towards the corrosion can be improved further by making the oxide layer thicker. This is done by anodizing aluminum. During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminum to make a thicker protective oxide layer. The oxide layer can be dyed easily to give aluminum articles attractive color and finish. ओके, सो अंडरस्टूड। आयोडाइजिंग के ऊपर पॉइंट आएगा, तो आयोडाइजिंग के ऊपर क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? पहली बात पूछेंगे आयोडाइजिंग क्या होता है, तो बोल देना भाई वी वांट टू अप्लाई a uniform layer of oxygen to the complete aluminum to make it uniformly anodized or uniformly protected. So anodization done. Okay. And in anodization process, oxygen is collected on which electrode? Collected on anode. Anode is made of what metal in anodization? Anode is made of aluminum. Which electrolyte is used in anodization? Water with dilute H2SO4 is used in as electrolyte in anodization. ये 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। आई एम वेरी श्योर अभी तुम लोगों को समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू टैकल इट। ठीक है अंतरिक्ष, क्लियर है? विराज, एनोडाइजेशन? Yes, sir. Understood, sir. कार्तिकेय, राजवर्धन, रवि, Yes, sir. अचिंत्य, सब लोग क्लियर है? sir. क्योंकि हट के थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरे को लगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्फेसिस के साथ समझाओ। अब हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है। मेटल ऑक्साइड्स की नेचर जो है बाय एंड लार्ज एसिडिक है, लेकिन कुछ है उनमें जो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है ये भी मैं बताऊं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। लाइक आई सेड, those metal oxides which are dissolved in water are called alkaline. So metal oxide Sir, screen soluble. share. Thank you. Metal oxide soluble in water are called alkaline. Alkaline सबको पता ही है, वो बेस जो पानी में घुल जाए, bases which ये लास्ट चैप्टर में हमने किया था एसिड बेसिस which dissolve in water। कौन कौन से हैं दोस्तों देख, सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला। और तुम लोग भी अपनी देखो एक बार क्या रिएक्टिव को याद करो और फिर उसको यूज करो, जब भी शुरुआत करो वहीं से शुरुआत करो, लर्निंग में, प्रोसेस में, अपना रिवीजन। सो हमारे पास आया था पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड होगा K2O प्लस H2। K2O प्लस H2 will give you 2KOH। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ AQ, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? Sir, aqueous. Aqueous. एक्वस का मतलब? Sir, base or acid still in water. Still in solution of water. Liquid form. Something like this. Liquid form. लिक्विड फॉर्म मीनिंग गलत। मैं बताता हूँ एक्वस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर वो ऐसा हुआ कि यहाँ पानी रखा हुआ तुमने और यहाँ पड़ा हुआ नीचे, ये ऐसे पड़ा, इसको एक्वस नहीं बोलेंगे। पानी में मिला होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्वस। Next comes Na2O plus H2O will give you NaOH. Aqueous. ये लिखना है आप सबने, एक्वस एक्वस लिख नहीं सकते। सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, ध्यान रखना ये सब लिखा जाना है। सॉलिड, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो एक्वस। ओके,
सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड का क्या था, CaO। ये वो चूना है जो पेंटर लोग चूना आपके घर में पुताई करना, पुताई करना बंद कर दी लोगों ने। पहले पुताइयां होती थी, पहले ये लोग नहीं होते। पुताई वो लेके आते थे चूना बोरी में, और एक बहुत बड़ा बर्तन के अंदर पानी भरते थे, उसके अंदर ऐसे लग, उसके अंदर वो रिएक्ट करता था वाटर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, सारी हीट निकलती थी, बुलबुले निकलते थे, बुल बुल। सॉलिड, लिक्विड, एक्सोथर्मिक, CaOH। CaOH होता है, और दिस आल्सो गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस। एक बस एक मिनट चेक करें हाइड्रोजन गैस का थोड़ा सा, या नहीं, सी नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं। ओके, वो जो बुलबुले हैं वो उसके निकलते हैं, वाट पानी के बुलबुले निकलते हैं, वाटर। ओके दोस्तों, इनके शॉर्ट नाम भी ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं क्विक लाइन। गुड इवनिंग। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, एक्चुअली है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कैल्शियम गुड इवनिंग सर। हाइड्रोक्साइड। बेटा ध्यान दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं भव्य, हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड, इससे पहले स्लाइड देखा है कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है। शुरू शुरू की ऊपर की जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ। उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन स्लो हो जाती है, किस किस की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, थोड़ी कम है, थोड़ी सी होती तब भी है। उसके बाद एल्यूमिनियम और वो नीचे है जिंक, तो उनको हीट करना पड़ता है, आयरन को हीट करना पड़ता है, तब जाके होती है। कॉपर से भी हीट करके रिएक्शन होती है। हाँ, अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करो तो रिएक्शन होती है। अब देख लिया मेटल ऑक्साइड बन गया तो उनकी नेचर कैसी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विकलाइन, क्विकलाइन, और इसका दूसरा नाम होता है स्लेट लाइन। ये हो गया दोस्तों। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस, हम ऐसी देखेंगे जो कि अच्छा, अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना आप लोगों से यार, चैट बॉक्स में जल्दी बताना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, एसिडिक और बेसिक? आंसर, सबने बेसिक बोला है? Yes, sir. सर मेरे हाँ को हाँ, एसिडिक कार्तिक, लगा। कार्तिक मेरे ख्याल से नोट्स तो मैं शेयर कर चुका हूँ यार इसके ग्रुप में, बाकी लोगों को भी नहीं मिले नोट्स। कल भी तो किए थे मैंने, कल तो पीरियोडिक टेबल भी डाली थी, सब कुछ डाला था। हाँ यार, कंफर्म करो यार मेरे को। एसिडिक। बेसिक होता है, बेसिक। अरे भाई, बेसिक। राजवर्धन नोट्स नहीं भेजे क्या मैंने? No, sir. सर Period is not there. विराज ने भेजे थे। अच्छा, नहीं तो नोट्स मिल गए कि नहीं मिल गए सृजन के? No, sir. मैं बाकी Sir, वो हाँ? अच्छा बोर्ड वाले नोट्स भी नहीं आए सर। वाले नहीं, ठीक है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं अभी कर देता हूँ, सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, मैं भूल जाऊंगा फिर। हम्म,
ठीक है, मैं नोट्स याद दिला दिया करो, मैं कई बार भूल जाता हूँ, क्लास पे ज्यादा फोकस हो चला जाता है तो। दिस इज चैप्टर नंबर 3। ओके भाई, चैप्टर नंबर 3 के मैं तुम्हें डाल रहा हूँ सृजन के नोट्स। कल मैंने डाले थे, मैं बोल रहा था क्वेश्चन बैंक भी डाल रहा हूँ यार, ऐसा मत बोलो कि नहीं डाले। कार्तिकेय देखना आ गए कि नहीं आ गए? आए हैं, मैंने डाले, खुद डाले मैंने यार, कल भी डाले थे। कार्तिकेय चेक करना एक बार, आ गए कि नहीं? ये सर है। आ गए। कार्तिकेय मिश्रा कंफर्म करें आप। हाँ भाई कार्तिकेय। सर चैट में लिखा है उसने। अच्छा चलो ठीक है, मिल गया ना, गॉट इट। ओके दोस्तों, एक काम करेंगे, कल मैं तुम्हें समझाऊंगा, ध्यान रखना। अभी देखो, अब बड़ी मजेदार बात है। बड़ी मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये है, एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है बेसिक, और उसके साथ हम मिला रहे हैं एसिड। तो कौन सी रिएक्शन होगी? बेस और एसिड कौन सी रिएक्शन करते हैं अंतरिक्ष? सर सॉल्ट। The neutralization. न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन का एक ही मतलब है, एक बनेगा सॉल्ट, दूसरा बनेगा वाटर। कल ही हम इस रिएक्शन को, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी लोड है तुम्हारे लिए भाई, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। केमिस्ट्री तुम्हें मुश्किल इसलिए लगती है कि आज तक किसी ने तुम्हें बताया नहीं, ये सब याद कर लो, लो, अब करने पड़ेंगे एग्जाम में मार्क्स। ठीक है, और मैं जिस तरीके से समझाया, आई एम वेरी होपफुल कि तुम लोगों को समझ आ जाएगा। वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके चलो, बाय फॉर नाउ, वी मीट टुमारो। टुमारो तो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे वीकेंड पे, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे 1-2 क्लास ऑफ करनी है, तो हो सकता है मैं तुम्हें कल या फिर परसों 2 क्लास और दूं अपनी, मतलब जो मैं लूंगा। असिस्टेंट टीचर्स तो लेंगे ही जो लेंगे। मुझे एक चीज का और मैसेज कर दो कि मेरे को मैथ्स प्रैक्टिस करवाना, तुम लोगों को क्या प्रैक्टिस कराना, क्लास खत्म होते ही क्या प्रैक्टिस करना चाहोगे रिवीजन क्लासेस में वीकेंड में, नॉट मेरी क्लास, जो असिस्टेंट टीचर्स लेंगे। सो रिवीजन का मेरे को सजेस्ट करो टॉपिक अभी, ठीक है? चलो ओके गाइस, डू इट राइट नाउ, अदरवाइज फॉरगेट। चलो बाय 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 Greetings, sir. बाय।